one aspect on which this report has dealt at length, and this can only happen if we have standards and protocols which help in channelizing investments in the development of ITS. ITS is always going to be a public-private partnership effort, ladies and gentlemen. Second is, but possibly we need to look at much beyond and try and integrate even very sustainable, create a center of excellence for all forms of transportation. And this center can coordinate with cross-disciplinary team for continuous research, development and implementation of smart, and we will be shortly releasing the task force report for that. Once again, I would like to request our beloved secretary, Shri Sanjay Mitraji, who has been Honorable Minister, Nitin Gadkari, my colleagues from the NHITCL. This is one of our major successes that we can count in the past year or so, where we have come up with ePace, we have come up with Inam Pro, and today we have come up with the ITS report, the road. And I'm very happy to tell you that it has gone down to our absolutely to our field levels to each PWD division which works for us. In parallel, we have also been creating a monitoring system for the NHAI, which is broadly similar to this, but probably has some additional. I congratulate Anand Kumar, Sanjay Jaju, and all our colleagues for the ePace experiment. The Inam Pro experiment is also unusual in as much that we are seeking to harness the power of the marketplace to source major materials for us like cement and iron and steel. This is still very much electronic marketplace to supply crucial inputs to the roads and infrastructure sector. And finally, I come to the report of the committee headed by Dr. Mohandas Pai. I think it has given us just a set of amendments to the Central Motor Vehicle Act and the rules. And that is the main governing act which governs my colleagues, and congratulate all of you present here for these very important initiatives. Thank you. Thank you, sir. हमारे विभाग के एमडी हमारे एफए और उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जिनका सहयोग हम सबको मिल रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सहयोग के कारण और आप सब ने अच्छे कार्य करने के कारण आज देश में बहुत अच्छा समाधान है, और जिसका श्रेय आप सब लोगों के विशेष रूप से स्टेक होल्डर्स के सहयोग के लिए है। जो निर्णय हमने किए हैं वो क्यों किए, ये समझने के लिए हमें अपने कार्य की समीक्षा करनी होगी, जो विशेष रूप से भूतकाल से संबंधित है। हमारे देश में रोड सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और रोड सेक्टर में जो काम हम कर सकते हैं उसमें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। फिर भी हम जिस प्रमाण पर काम करना चाहिए उतना उस समय नहीं कर सकते। इसके कारण जो थे उसमें से पहला कारण जो था वो लैंड एक्विजिशन के लिए अनेक समस्याएं, गंभीर समस्याएं खड़ी हुई थी। लैंड एक्विजिशन के बारे में 2013 के कानून के बाद काफ़ी क्लियर हुआ है, फिर भी अनेक जगह पर नए एक्ट के अनुसार अगर हम लोग ज़मीन की कीमत देने का निर्णय करते हैं तो जो कुछ डिस्प्यूट्स खड़े वो भी सॉल्व हो सकते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, रीजनल मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अगर इस परिस्थिति का अगर ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि लैंड एक्विजिशन हमारे सामने समस्या नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा था वो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बारे में। कहीं जानकारियाँ नहीं थी, कभी स्टेट गवर्नमेंट में हमारे काम पेंडिंग थे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग है। डिपार्टमेंट में पूछा तो ये बता दें कि हमने लिया है, वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कहती थी अभी तक हमको इसके बारे में ये कागज नहीं मिले, और इसका ओवरऑल परिणाम डिले में होता है। इन सब बातों को इकट्ठा करके हमने काफ़ी निर्णय किए हैं। 21 निर्णय हमारे कैबिनेट में हमने हमारे पॉलिसी में वेरिएशन किया है, और इसलिए हमने ये भी निर्णय किया है कि 80% अगर लैंड एक्वायर नहीं होती
तो हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं, जो रेलवे ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया आरोग्य के लिए, उसके कारण भी काम फास्ट हुआ। कुछ कमियां, कुछ गलतियां हमारे पास थी, कुछ गलतियां बाकी डिपार्टमेंट में थी, पर ओवरऑल जो कमियां हैं वो दूर करने के कारण अब हम आगे स्पीड से बढ़ सकते हैं। उसमें अड़चनें जो है वो काफ़ी कम हुई है। अड़चनें समाप्त तो हुई ऐसा मैं नहीं कहता, और इसलिए रोड सेक्टर में, रोड कंस्ट्रक्शन में जो अड़चनें थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी अड़चनें कुछ कम है। 3 प्रकार की बातें महत्वपूर्ण हैं कि हमारे जो काम करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे सिस्टम के हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, चाहे हमारे काम करने वाले पीडी हो, रीजनल मैनेजर्स हो, इंजीनियर्स हो, पहली बात तो ऐसी है कि इसमें एक सकारात्मक दृष्टि इसकी आवश्यकता है कि हमारा काम अच्छे क्वालिटी का काम, गुड क्वालिटी और मिनिमम कॉस्ट, इसके साथ हम जल्द से जल्द हमारा काम पूरा कैसे करेंगे, इसमें हर जगह पर स्टेक होल्डर में इनिशिएटिव की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे ध्यान में ये नहीं आता कि डिले करने वाले कौन हैं, और डिले करने वाले कौन है ये ध्यान में आकर उनको एक्सपोज करना, इसी के लिए आईटी का काम लिया है कि कौन, इतनी कमेटियाँ बनती है और मैं पता करते रहता हूँ कौन सी कमेटी कितने दिन में बैठकर कितना डिले करती है। हर कमेटी ऐसी है फुक्कड़ जो 3-3 महीने फाइल लेके बैठती है, निर्णय नहीं होता, और इसलिए कमेटियां बनाने का काम हुआ पर निर्णय नहीं होता, और इसके कारण प्रोजेक्ट डिले होते हैं। तो टॉप टू बॉटम कुछ डिपार्टमेंट की और कुछ फिर फाइनेंस के साथ बनती है। तो सब जगह पर जो डिले है वो कम करना, ट्रांसपेरेंसी पूरे तरह से लाना, और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है हर व्यक्ति का, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट होना, उसका मॉनिटरिंग होना। ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी उसी समय संभव है जब तक डाटा नहीं मिलता, और डाटा उसी समय मिल जा सकता है जब आपके पास कोई आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा जिसके आधार पर इसका इवैल्यूएशन होगा। और इसलिए ये जो प्रोसेस करने की कोशिश की गई है कि इसमें किसी भी समय प्रोजेक्ट में 2000 प्रोजेक्ट है, और हर जगह पर जब स्वाभाविक सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए, तो हर कंसल्टेंट वही नाम अपने इसमें घुसा देता था ताकि उसको क्वालिफिकेशन हो जाए, और बाद में भर्ती लोगों को अपॉइंट करके काम करता था। अब ध्यान में आया कि इसका डाटा कलेक्ट होने के कारण कोई किसी ने डुप्लीकेट किया है, एक आदमी का नाम 4 जगह लिखा है, तो तुरंत ध्यान में आएगा, और इस बना के दिए ताकि इसमें हम लोग डिले ना हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छी हो, और टाइम पीरियड जो कम हो। इसके लिए ये अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं। जो सीमेंट और स्टील के लिए आज जो उनकी 150 फैक्ट्रीज है उन्होंने अपना रजिस्टर किया है। अब ये सीमेंट रेट पक्का होने के कारण इसका फायदा ये हुआ है 1 अप्रैल से ये शुरू हुआ है। अभी मैंने इंक्वायरी की 5 लाख टन सीमेंट इसमें खरीदी किया गया है। पर दूसरा फायदा ये हुआ कि सीमेंट रेट का बेंचमार्क होने के कारण अब कॉन्ट्रैक्टर हमारा रेट लेके वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है कि इससे 5 रुपये कम दो, हम लोग कहते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी एक उसका बेंचमार्क होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसकी शुरुआत हुई। सिस्टम में कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कार्टेल ना करे, और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो कॉस्ट है वो रिजनेबल रहे। इसके लिए स्टील है, सीमेंट है, बाकी भी जो मटेरियल है इसके बारे में ये निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो लैंड एक्विजिशन से लेकर यूटिलिटी शिफ्टिंग से लेकर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, रेलवे ओवर ब्रिजेस से लेकर लिटिगेशन, सभी बातों में जब सुधार हुआ है तो स्वाभाविक रूप से मटेरियल भी मिलना चाहिए, और इसके लिए भी सुधार हुआ है। जो डीपीआर बनाने वाले हैं उनको मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूँगा, मेरा बोलने का अर्थ गलत मत लगाइए। अब मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उसमें डीपीआर किसने बनाया है, उसको भी वक्त आया तो आरोपी बनाने के लिए मैं
कानून में सुधार करने की बात सोचा। मैं इस बात से बहुत लज्जित हूँ कि रोज आज ऐसा एक दिन नहीं जाता टीवी पर मैं देखता हूँ इतने लोग मर रहे हैं तो टीवी देखने की इच्छा नहीं होती। मैं हिमाचल प्रदेश में था, आज भी कल भी मैं टीवी पर देख रहा था, यही चल रहा था। और इसलिए 1.5 लाख लोग हर साल रोड पर मर रहे हैं। ये किसी भी युद्ध में इतने नहीं मरते, किसी भी कोई गंभीर घटना में ऐसे नहीं हुआ, इससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और इसलिए रोड सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और रोड सेफ्टी में जो बाकी भी बातें हैं उसमें ऑटोमोबाइल व्हीकल से उसके प्रॉब्लम्स होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर के भी प्रॉब्लम होंगे, उसके ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, उस काम की तरफ हम ध्यान देंगे। पर बड़े प्रमाण पर रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी गलतियाँ होती हैं। और रोड इंजीनियरिंग में ये अधिकारियों को कहना आसान होता है कि हर एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। ये सच नहीं है। इस प्रकार से किया तो मैं तो बहुत से एक्सीडेंट्स के लिए रोड इंजीनियरिंग जिम्मेदार है, ये मैं उदाहरण देखकर विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए आप जब डीपीआर बनाओगे और आपको अगर कोई एनएचआई में और मिनिस्ट्री में कहेंगे कि डीपीआर में ये डिजाइन बदलो, उससे रिटर्न मांगो। सबसे पहली प्राथमिकता है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ अंडरब्रिज करना पड़ेगा, जहाँ है वहाँ फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज रोड की स्पीड बढ़ा दी आपने और अंडरब्रिज काट दिए तो एक्सीडेंट्स होंगे। और इसलिए लोगों की जानों की सुरक्षा के लिए डीपीआर में परफेक्शन होना चाहिए। और इसलिए डीपीआर में परफेक्शन करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से बहुत सी कंपनियां ऐसी है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक्सपोजर है। और इसलिए वर्ल्ड में जो रोड डिजाइनिंग हुआ है उसमें कौन से इनोवेटिव डिसीजंस हुए हैं, इसका अध्ययन आपने करना चाहिए। और वो अध्ययन करके वहाँ की जो नई नई बातें वो आकर आपने अथॉरिटी को भी सुझानी चाहिए, मिनिस्ट्री में भी लानी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। एक बात मेरे ध्यान में आई कि हमने इनिशिएटिव लिए पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि टेंडर पेपर में वो इंक्लूड नहीं होते, या आपको कोई तो भी गाइडलाइन देकर जब तक लिखता नहीं कि ये करो तब तक वो आते नहीं है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। 3 इनिशिएटिव हमने लिए। वेस्ट प्लास्टिक हम डाल सकते हैं बिटुमेन में, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत आवश्यक अच्छा है, अच्छा निर्णय हुआ। पर कितने जगह कॉन्ट्रैक्टर इसका यूज कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, स्टेट हाईवे, इसके ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि इसका प्रचार होने से जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम देश में खड़ा हुआ है वो सॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो ऑयल स्लैग निकलती है वो उसके पहाड़ के पहाड़ पड़े हुए हैं। एक तरफ इन्वायरमेंट की दृष्टि से हम लोग पत्थर निकालने के लिए पहाड़ खोद रहे हैं, यही वेस्ट मटेरियल अगर हम यूज करके उसमें यूज करते हैं तो ये जो स्टोन है उससे भी अच्छा है और इसको यूज करने से कॉस्ट भी कम हो सकती है। और इसलिए इस प्रकार के मटेरियल को यूज करने के लिए इंकरेज करने के बारे में भी हमने नोटिफिकेशन निकालकर वो उसके ऑर्डर निकाले हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऑर्डर निकालने के बाद कौन आदमी बीच में है कि जो मिनिस्टर भी कहता है, सेक्रेटरी भी कहता है, ऑर्डर को भी यूज क्यों नहीं करता। क्योंकि ये जो आउटडेटेड दिमाग है, जो नए इनोवेशन को, नए रिसर्च को स्वीकारना ही नहीं चाहता और वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन और क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इसमें कैसे आएगा। और ये आने के लिए जो माइंड सेटअप है वो बदलने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे जरूर है कि नए इनिशिएटिव, नए इनोवेशंस को स्वीकार करना, जो सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसको स्वीकार करना, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। अभी हमने इसके ऊपर एक कमेटी अपॉइंट की थी तांबे साहब की अध्यक्षता में और उसमें काफ़ी कंसल्टेंट लिए थे, उनका भी रिपोर्ट आया है।